हेलो नमस्ते सत श्री अकाल सलाम टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ इंडियन आर्मी मेजर गौरव आर्या एंग्री एंड फनी ठग लाइफ सैवेज सिग्मा रूल्स। तो आज देखते हैं गौरव आर्या सर कैसे धुलाई करते हैं। तो आज का वीडियो बिना किसी इंतजार के आइए शुरू करते हैं। आप जरा आंख बंद करिए अपनी, मेरे पाकिस्तानी भाइयों बहनों। समझ गया। आंख बंद करिए और सोचिए, जरा एक फिगर अपने दिमाग में लाइए। 130 करोड़। अच्छा, एक छोटा सा चूहा, ठीक है। और उसके बगल में एक बहुत बड़ा हाथी बैठा है। अब आपको कंपैरिजन पता लग जाएगा। क्या बात है सर। जितनी आपकी टोटल पॉपुलेशन है ना, उतने हमारे बच्चे प्राइमरी स्कूल जाते हैं। इस वीडियो में होंगे मेजर गौरव आर्या के कुछ लेटेस्ट धमाकेदार अटैक्स और उनके कुछ ब्रांड न्यू टारगेट्स। Most of these people, no, these stars I'm talking about the actors. Actors एक तरफ, stars, they have the IQ of a cauliflower. इनकी अकल ही नहीं है, ये इनको पता ही नहीं है कुछ। They are not very well read. और मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रहा, इनकी बुद्धि ही नहीं है। They are not intelligent people. मेजर के सबसे रिसेंट टारगेट की बात करें तो वो निकल के आई हैं बॉलीवुड से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दरअसल हाल ही में एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने इंडियन आर्मी को लेकर एक ट्वीट कर दिया, ये फंस गया। जिसके बाद न्यूज हेडलाइंस में वो छा गई फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। But my only question to Richa Chadha is that what did you mean by your tweet on Galwan? What exactly were you wanting to convey? I am sorry बाबू। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इनका ट्वीट कई सारे देशवासियों को पसंद नहीं आया और सब ने ऋचा चड्ढा की खूब धुलाई करी। गलवान सेज हाय कहने का उसका ये मतलब था कि साहब आप पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन आप चाइना के बारे में तो कुछ नहीं कहते। ये पागल औरत। हद ही हो रखी है भैया। नॉनसेंस। और धुलाई करने वालों में से सबसे आगे रहने वालों में से एक थे मेजर गौरव आर्या। Fame, she wanted people to recognize her name because otherwise she's going to be one other starlet from Bollywood who nobody knows. Obviously Richa Chadha. People are saying, oh, she acted very well in that movie. Maybe so. But if you're not a good Indian, it does not matter how good an actor or actress you are. How does that matter to me? For example, I will judge you by the way you treat your army and by the way you treat your own country and how respectful you are of the armed forces in the country. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वैसे मजे की बात यह है कि इसी कंट्रोवर्सी के बाद मेजर को ऋचा चड्ढा के बारे में पता चला। I'd never heard of Richa Chadha in my life, and then I tried to Google, and then I figured out he has been in a few movies. गजब बेइज्जती है। इनका मानना है कि ऋचा चड्ढा ने ये जानबूझ के किया था। I think she knew very well what she was talking about. It was intentional. और उनके हिसाब से इसके पीछे का कारण था फेमस होना। Many people from the film industry resort to, I'm not saying all, but many people resort to, say something like that which gets you publicity. I had never heard of Richa Chadha, but today I know her name. And there'll be crores of people like me in this country who had no clue who Richa Chadha was. Today everybody knows her. And I think this is exactly what the lady wanted. बात तो सही है। You abuse the soldier, and suddenly, within a group of certain people, you become very popular. You become very famous. क्या बात, ये बात है। मेजर इन एक्ट्रेस से नाराज हैं क्योंकि उन्होंने अपने इस ट्वीट से इंडियन आर्मी पर सवाल खड़ा करने की कोशिश की। And she has been very disrespectful, and she did it deliberately because she wanted publicity, she wanted people to know her name, for which she wanted that kind of controversy, and she got it. And You wanted publicity because you're not in any movie, you're not on any web series worth the name. Nobody is looking at you nowadays. You have no career, and you decided to get rich off the Indian Army's name. It's as simple as that. कौन है ये लोग? बात अगर पीओ के हासिल करने की है तो इसके लिए तो इंडियन आर्मी तैयार बैठी है। What do they want the army commander to say? That we are not prepared? Says we will not do it? Is that the expectation from the army commander? The Indian army is ready 24/7. That is what the Indian army exists for. If tomorrow the parliament were to task the army, or the government were to task the army, walk into POK, they will walk into POK. At the time and place of their choosing. Government were to task the army, walk into POK, they will walk into POK. At the time and place of their choosing. और ऐसा कॉन्फिडेंस सिर्फ मेजर गौरव आर्या ही नहीं बल्कि हर देशवासियों को होना चाहिए। इस किस्से के बाद जब चारों तरफ से उन्हें गालियां पड़ी तो ऋचा चड्ढा ने माफी मांगी, मगर मेजर आर्या कहां माफ कर पाते। Now I haven't seen any successful film star making anti-national and controversial comments. I have not seen the Khans doing it. I have not seen the Kapoors doing it. I have not seen Akshay or even Kangana Ranaut or Katrina Kaif or Deepika Padukone or any one of these actresses or actors
making controversial comments because they have work, they have a job to do. उनको ना ध्यान नहीं केंद्रित कराना ना. They do their job and they do it very well, and that's about it. Now this lady here, she has made a comment, and then she, when the pressure got too much, she shot her mouth off, and then she got scared, and then she deleted a tweet, and then there was an apology in which there was this whole victim card throwing trick of hers. She's lying, obviously, Niranjan. She's lying through her teeth, and she's been caught, and now she's up against a wall. फिर मेजर आर्या ने ऋचा चड्ढा का और उनकी माफी का पूरा एनालिसिस किया। अपॉलॉजी जो होती है अनएक्विवोकल होती है। अपॉलॉजी किस तरीके से होती है कि जी मैंने जो काम करा, मैं आई फील सॉरी फॉर दैट, आई एम अशेम्ड, और व्हाटएवर यू वांट टू राइट, आप ये प्रॉपर लिखिए। मेरे नाना 1960s के वॉर में उनको पैर में गोली लगी थी, वो पैराट्रूपर थे। मेरे मामा जी फौज में थे, फौज मेरे खून में है। डोंट गिव अस दिस नॉनसेंस, नोबडी बाइज दिस नॉनसेंस। ऋचा चड्ढा, नॉनसेंस, किसी को 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। आज तक तो आपने नहीं बोला कि मेरे नाना जी फौज में थे। कौन सा इंटरव्यू जहां पे आपने बोला है कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग फ्रॉम अ फौजी फैमिली? ये सब के सब विक्टिम कार्ड प्ले करने वाले लोग हैं। 2 मिनट में प्रेशर आया, इनका गला सूख जाता है, विक्टिम कार्ड प्ले, कि नहीं मेरे तो ये, मेरा तो ये, मेरा कुछ नहीं तुम्हारा यार। तुमने आज तक तो बोला नहीं, आज तक तुमने एक्नॉलेज करा है। यू क्लेम टू बी फ्रॉम अ फौजी फैमिली, यू वांटेड टू बी वेरी स्मार्ट। व्यूअर्स को समझाया कि क्यों ऋचा चड्ढा ने ऐसा बोला होगा और कितने प्रेशर में होंगी ऋचा चड्ढा, जिस वजह से उन्होंने ऐसा ट्वीट किया। ऋचा चड्ढा ने ऐसा बोला क्यों, कारण क्या था ऋचा चड्ढा का बोलने का? What was the need for her to talk? मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस नहीं मिला फिल्म इंडस्ट्री में, राइट? लोग जानते भी नहीं हैं, और जाहिर सी बात है इतने साल हो गए फिल्म इंडस्ट्री में, अब एक डेस्परेशन है, और हो जाता है बिकॉज फिल्म लाइन एक बहुत अनसर्टेन किस्म की लाइन है। नौकरी तो है नहीं यहाँ पे जहाँ पे 1 तारीख को आपको तनख्वाह मिल जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको पिक्चर मिली नहीं मिली, अगर पिक्चर मिली तो पिक्चर काम करी नहीं करी, अगर पिक्चर काम करी तो ठीक है, नहीं काम करी तो फिर उसके बाद इंडस्ट्री का क्या रिएक्शन है आपके खिलाफ या आपके लिए, आपको आगे काम मिलेगा। तो बहुत इनसिक्योरिटी में पले बड़े लोग ये रहते हैं, ज्यादातर लोग। इसके बाद जब मेजर को पता चला कि पाकिस्तान ने भी अपने न्यूज चैनल्स में इस बात को मुद्दा बनाया, तब वो आ गए अपने फॉर्म में वापस और अपने पुराने फेमस टॉपिक पर वापस। राइट, जहां तक पाकिस्तान की बात है, देखिए हाथी चलते हैं कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान की आदत है छोटी छोटी चीजें करने की। तो ये बोल्ड टीवी और हम टीवी और ये 2-2 रुपए के चैनल जो है पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। मजाक उड़ानी है उनकी या उनकी बेइज्जती करनी है, मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, मैं डेली करता हूं, मेरा काम ही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को सीरियसली लेना चाहिए। दे आर अ बैंकरप्ट कंट्री, वो 2-2 टके के लोग हैं, उनको क्या, हम लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान मेजर का फेवरेट टॉपिक है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज आते हैं। वैसे सोचिए अगर पाकिस्तान में रहकर आर्मी के बारे में अगर कोई ऐसा कह देता तो क्या होता। मेजर ने बताया कि क्या हो सकता था अगर ऋचा चड्ढा जैसे लोग वहां पर कुछ कहते। अगर इनमें से कोई भी, ऋचा चड्ढा वगैरह कोई भी, अगर ये पाकिस्तान में चीज बोलता है, इनकी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुकी होती है अभी तक। सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुकी होती है अभी तक हो चुकी होती। ISI की ब्लैक वीगो आती, गाड़ी उठा के लोग ले जाते हैं और बात कर लेते हैं, मैडम क्या बात है, जरा हमें समझाइए, बहुत क्रांति आ रही है दिल में आपके, हमें भी समझाइए जरा। तो पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता, भारत में ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज दिस इज अ डेमोक्रेसी। यहाँ पे सिविल सोसाइटी बड़ी स्ट्रांग है। फिर मेजर ने बताया कि भारत में कैसा माहौल है और इस माहौल का लोग कैसे फायदा उठाते हैं। तो आप इंडियन आर्मी को कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक्स और सर्जिकल स्ट्राइक्स, आप ये कह सकते हैं कि बालाकोट में सिर्फ कुछ कौवे और कुछ कौवे मरे थे, कुछ पेड़ गिरे थे, आप कह सकते हैं। आप आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, बिल्कुल। तो ये लोग क्या करते हैं, ऋचा चड्ढा जैसे लोग, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठा के, भारत का संविधान का फायदा उठा के, और जो भारत में अभिव्यक्ति की आजादी है, द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उसका इस्तेमाल करके फालतू की बकवास करते हैं, फालतू की बकवास करते हैं। थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। तो ऐसे ही कुछ बॉलीवुड स्टार जिनके बयान अक्सर बेतुके होते हैं और जिनसे मेजर गौरव आर्या परेशान हो चुके हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने एक सलाह दे डाली। Don't get into serious stuff. You'll embarrass yourself. Not that you have any shame left, but you'll embarrass yourself. Why do you want to embarrass yourself? ये आप यहीं तक रहिए ना, फेंडी, गुची, वर्साचे, यहीं तक। इसके आगे बुद्धि नहीं है, बात मत करो। इसके आगे बुद्धि नहीं है, बात मत करो। इसके बाद मेजर गौरव आर्या ने शॉर्ट में बताया कि गलवान में एक्चुअली हुआ क्या था और गलवान के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और ऋचा चड्ढा जैसे एक्ट्रेसेस को समझाइश दी। You know, the Chinese, especially at PP-15, the Chinese wanted to cross over and bang on the line of actual control. They established a tent, they pitched a tent,
which our boys uprooted and threw away, and there was a clash. That is what happened at Galwan. They were trying to enter India, and our soldiers, led by Colonel Babu, highest level of gallantry and selfless sacrifice displayed. He got the Mahavir Chakra, and our soldiers and our officers, they fought like tigers, and they pushed back the Chinese. And the Chinese initially said there was nothing which happened in Galwan, and slowly they said, we lost 4 people, and that 4 became 14. And then the Russians came back and said over 47 people had been killed in Galwan. And the CIA came up with a similar report of 50 plus people, or Chinese soldiers who had been killed in Galwan. So I don't know what Richa Chadda meant by her tweet. I have no idea. But, in modern day warfare, and in these times today, this is reminiscent of some of the highest standards of gallantry and self-sacrifice that is practiced by the Indian Army, and we salute our martyrs from Galwan. And I don't know what this actress wanted to say when she said that, hi Galwan, or whatever she said. I read that tweet. अब गलवान की बात हुई तो बात करते हैं चाइना की। हाल ही में G20 समिट में एक वीडियो निकल कर आया जहां पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना के प्रेसिडेंट से हाथ मिलाया और बाजू हो गए। तब मेजर आर्या ने बताया कि चाइना के साथ ऐसा ही करना चाहिए था। सामने लग गए, मोदी जी ने हाथ मिलाया, मोदी जी निकल गए आगे। वो देख रहा था मैं, इनके साथ यही करना चाहिए। चीनियों को जब तक आप टाइट नहीं करोगे ना, इनमें चीखें नहीं निकलेंगी। चाइना को भी बॉर्डर में ज्यादा पंगा करने से कोई फायदा नहीं मिल रहा है। चाइना कहता है हम ताइवान को खा जाएंगे, हम लद्दाख में आने की कोशिश, ये लुटेरों वाली बात चीन करता है। चोर है तू, लुच्चा है तू, हद से बड़ा तुच्चा है तू। जो लोग सोचते हैं कि चाइना के सोल्जर्स ने बॉर्डर पार किया था, उन लोगों को मेजर ने समझाया इंडिया चाइना बॉर्डर का मौजूदा स्टेटस और आज का सच। वहां से चाइनीज को भी अब लगा है कि ये महंगा सौदा पड़ रहा है, और हाँ, वहां पे बहुत कष्ट वाला जीवन है, इसलिए धीरे धीरे वहां से विड्रॉ कर रहे हैं। कोई फायदा नहीं है इसको करने का, ज्यादा इलोंगेट करने का। अरबों डॉलर वहां पे खर्च हो जाएंगे और हाथ किसी के कुछ लगना नहीं है। चीन को ऐसे लगा था कि भारतीय सेना डर के मारे पीछे हट जाएगी, वो काम हुआ नहीं वहां पे। बट चाइना हमारे देश बॉर्डर पार नहीं किया था ना सर? नहीं, बॉर्डर पार नहीं करा। लाइन ऑफ एक्ट कैसे बॉर्डर पार कर देगा? लाखों इंडियन आर्मी खड़ी है हथियार लेके, किस तरीके से पार? ये क्लैरिटी होनी चाहिए जी। चाइना ने जरूर वहां पे इक्विपमेंट लाया है, चाइना, इसमें कोई डाउट नहीं है, और चाइना वहां पे जरूर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन चाइना अपने इलाके में कंस्ट्रक्शन कर रहा है। अच्छा, फिर भी ये वायलेशन है, क्योंकि जो हमने अग्रीमेंट साइन करा था चाइना के साथ, उसमें यह था कि जैसे हम लोग बात करते हैं कि 10 किलोमीटर फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पे कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स और किसी भी प्रकार की सॉर्टीज हैं, एयरफोर्स रन नहीं करेगी। चाइना ने वहां पे भी सॉर्टी रन करी, लेकिन फिर मैं बता दूं, चाइना ने सॉर्टी करके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार नहीं करा। चाइना अपने ही साइड थी, लेकिन हमारी एक अग्रीमेंट थी उनके साथ कि आप अपनी साइड भी नहीं करेंगे, हम भी अपनी साइड नहीं करेंगे। आज की तारीख में चाइना भी कर रहा है, भारत भी कर रहा है, तो ये बात है ऐश्वर्या, आज का ये सच है वहां पे। अब डेमोक्रेसी का फायदा उठाने वालों की ही बात हुई है तो हाल ही में कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप में नजर आए जाकिर नायक वही हैं जो अपनी स्पीच के लिए फेमस रहते हैं, हेट स्पीच के लिए। देखिए, मैं कतर वालों को एक बात कहना चाहता हूं कि जाकिर नायक जैसे लोग क्या करते हैं, ये आपके यहाँ ठीक है, भारत के लिए ठीक नहीं, आप इसको रख लो अपने पास, आपको रखना है तो जाकिर नायक को। ये जब डेमोक्रेसी में रहते हैं तो डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का फायदा उठाते हैं। हमारे लोकतंत्र का इसने फायदा उठाया, हमारे संविधान का फायदा उठाया, और इसने अपना जहर घोला सबके कानों में, और जब पुलिस के पीछे पड़ी तो भाग गया। तो देखिए कि क्यों मेजर ने कहा कि लोकतंत्र का फायदा उठाने वालों को उठा लेना चाहिए। वैसे भी ये केवल 250 ग्राम के ही है इनके हिसाब से। ये हल्का है, 250 ग्राम का, इसको उठवा लो। मेरी बात मानो, जाकिर नायर को उठवा के और वापस मुंबई पुलिस के इसके हवाले कर दो। मुंबई पुलिस बिल्कुल ट्रेंड है, मुंबई पुलिस को पता है कौन सी चाबियां कैसे लगानी है। इसको उठवा लो वहां से। ये कतर से कभी ना कभी तो वापस जाएगा, या मलेशिया फलेशिया जहां पे भी रहता है, कभी ना कभी जाएगा। इसको उठवा लो, क्योंकि ये जो बुड्ढा है ये जहर फैलाता रहेगा। और बकायदा मेजर वार्निंग भी दे रहे हैं कि इन्हें गलती से भी यूपी पुलिस को मत सौंपना, वरना गाड़ियां पलट जाएंगी। गलती से यूपी पुलिस में मत पकड़ा देना आप लोग, यहाँ पे हर दूसरे महीने गाड़ी पलट जाती है। इमोशनल डैमेज। तो ये थे मेजर गौरव आर्या का लेटेस्ट रोस्ट मोमेंट्स। ऐसे बाकी वीडियोस भी देखिए हमारे चैनल पे, बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आई वॉज पोस्टेड इन अ प्लेस कॉल्ड पुंछ, शुगर सेक्टर 36 सेक्टर बोलते हैं हम लोग। बर्फ गिरी, हमारे फ्रेश के सप्लाईज ब्लॉक हो गए। हमने 3 दिन लगातार नमक और चावल खाया था। मैं अल्फा कंपनी कमांडर था, मैं अल्फा कंपनी के कुक से पूछता था बुला के, वो हम दोनों में एक जोक बन गया। फिर लंच में क्या है और डिनर में क्या है, तो कह रहा साहब लंच में नमक और चावल है और डिनर में चावल और नमक है। सो एंड इट्स परफेक्टली ऑलराइट, इट्स परफेक्टली ऑलराइट। हाउ डज इट मैटर? तो क्या हुआ अगर खाना खराब हो गया? ऑफिसर्स लुक आफ्टर द जवान्स। फौज में
I'm talking about the Indian Army. हम लोग एक चटवट कोड होता है हमारा. We say that the safety, honor and welfare of our country comes first, always and every time. The safety and welfare of the troops we command or the men we command comes next. And our own safety and welfare comes last, always and every time. It's followed in letter and spirit. And if there is a black sheep within the army, he's weeded out. For all its faults, it is the most fantastic organization this country has ever seen or will ever see. क्या बात है, ये था आज का वीडियो. माय गॉड यार, गौरव आर्या सर ने जो छक्के छुड़ाए हैं ना, एकदम यार सामने वाले की ना खटिया खड़ी हो जाती है, ठीक है ना, इस तरह से बोल देते हैं. और ऋचा चड्ढा जी ने जो ट्वीट किया था बहुत ही पेचीदा सा, आई नो वो क्या कर रही थी वो आप समझ ही गए होगे कि किसी की नज़रों में आ नहीं रहे हैं तो वो होता है ना कि सबका ध्यान अपनी तरफ लाना है, क्योंकि सब भूल चुके हैं आपका नाम भी कि आपने कौन सी पिक्चरें की थी या कुछ किया था, क्योंकि अब तो काम मिल नहीं रहा है. तो इसी वजह से उन्होंने ये पब्लिसिटी के लिए किया है उन्होंने अपने लिए. और बहुत ही पेचीदा सा था ये, क्योंकि ऐसा करना नहीं चाहिए. आप जिस देश में रहते हो उसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उसी के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हो, तो बहुत ही बकवास चीज़ होती है ये. और आपको वही है ना यार, आपको छूट मिल रखी है तो आप उसका फ़ायदा उठाते हो. उसके बाद लेकिन गौरव आर्या सर ने जो इनकी बोलती बंद की है ना, और सबने ही मिलके, जितने ही लोगों ने इनको जवाब दिया है उस ट्वीट के बाद में, बोलती तो बंद हो ही गई होगी, मुंह तो बन ही गया. उनके सॉरी में भी वो सॉरी वाली बात नहीं थी, जैसा कि गौरव आर्या सर ने बोला ही. और इससे पता चलता है यार किस तरह की सोच रखते हैं लोग. कुछ लोग, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी सबके बारे में, लेकिन कुछ जहाँ पे अच्छे लोग हैं वहाँ पे बुरे भी हैं, तो वो करते हैं इस तरह की चीज़ें कि ये सुर्खियों में आ सकें. तो इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट करना चाहिए. और गौरव आर्या सर जो बोल रहे हैं ना, इस तरह से इन्होंने एकदम मतलब खटिया खड़ी कर दी यार, एकदम बोलती बंद करा दी, खून के आंसू रुलवा दिए उसको, ठीक है ना. तो बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, बहुत ही उम्दा जवाब दिए उनको. तो इसी के साथ आपको आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में. और ऐसे और भी वीडियोस देखने हैं, गौरव आर्या सर के बहुत सारे वीडियोस हैं मेरे चैनल में, तो उन्हें चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए. बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि उससे से मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी. और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.